Hello to everyone and welcome back to again Mission Ply YouTube channel. Today we are just going to discuss full social science top 50 to 60 questions. And in this question full video आपको इस full video में you have to just found the map based questions, multiple choice questions, a homework question and the questions from which we have to do in the today's session also. Mostly 50 to 60 questions approximately आपको मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सब्जेक्ट सोशल स्टडीज क्लास 10th टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट एंटरप्राइज. इसमें से कौन सा जो है वो इट विच इज द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट एंटरप्राइज. कौन सा इंटरप्राइज प्राइवेट में आता है. Wipro is a private enterprise. So the correct answer for this question is Wipro is the correct enterprise. Sorry, if Wipro is a private enterprise, not. And the remaining three is are public, which is government enterprises. Government owns this. Okay. Now question number 2. Find the odd one out from the following option. Moneylenders and traders, employer, relative and friend, landlords and large farmers, cooperative society and commercial bank. If we see then all the three, that means moneylender and traders, they are not a medium, मतलब कि they are not a medium to supply the money in a with a low interest. Employer and relative and friend, उनके साथ भी ये सेम कंडीशन. लैंडलॉर्ड एंड लार्ज फार्मर ऑल्सो. But cooperative society and commercial bank is the one that who can promote and provide the loans at a low interest, at a cheap interest of rate. Okay. Now the next question. Which industry provide employment to weavers at home. Which is the industry which provide weavers at home. मतलब कि which industry, कौन सी industry थी जो employment दे रही थी. हैंड स्पम कढ़ी, jute industry, silk, and the last one is none of the above. So which is the industry? जूट इंडस्ट्री इज नॉट द करेक्ट आंसर. सिल्क इंडस्ट्री इज नॉट द करेक्ट आंसर. नन ऑफ द ज़्यादातर बेसिकली कभी जब क्वेश्चन पूछना होता तो आता नहीं है. सो हैंड स्पम कड़ी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The term used for append integration or interconnection between country is known as privatization, globalization, liberalization, socialization. So if we talk about that the interconnection between countries is known as globalization. Because of globalization, the interconnection between countries may get possible, and by supplying of by supplying of raw materials, बाई फॉरेन एक्सचेंज, जो उसका करेंसी होती है, जो एक दूसरे कंट्री की करेंसी एक्सचेंज होती है. देन कल्चर एंड जब जितनी भी चीज़ें होती हैं जब कनेक्ट होती हैं, जब दूसरे कंट्री में शेयर की जाती हैं, आती हैं, तो वही होता है इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज. कैसे होता है? ग्लोबलाइजेशन. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन. Question: which of the following is not a term of credit? First of all, we have to just know that what is meant by credit. What is meant by credit? And do subscribe the channel. एक सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस थी दैट वी आर गोइंग टू कवर अ सैम्पल पेपर ऑल्सो. One sample paper we are going to cover in this channel, and इट इज़ बेसिकली आपका जो सोशल साइंस का पेपर होगा उससे 4-5 दिन पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी सैम्पल पेपर.
सोशल साइंस के लिए, दैट मीन्स SST के लिए. So stay tuned for the update and do subscribe and hit the bell icon also. Question: which of the following is not a term of credit? Credit, what is meant by credit? अच्छा, जब credit that means we have to just take a loan, and for taking of a loan interest rate is a credit. Bank depositors mode of repayment, it's not repayment, it's repayment. So basically we have to just submit some collateral, that means the credit, the collateral is not a credit. Okay, so the correct option is collateral. Next question: which was the first mill started in Kanpur? What is the first mill which starts in the Kanpur? It is on basically on the your history subject, basically from your history, and from the chapter number 4. Okay, so you have to just read the NCERT also for these MCQ video, for these, sorry, for these MCQ practice. Arvind Mill, the very first one is Arvind Mill, the second one is Vardhaman Mill, the third one is JCT Mill, the fourth one is Align Mill. So Align Mill is the correct answer. That means Align Mill सब में डबल एल होगा. ओके, दैट मीन्स अलाइन मिल इज द फर्स्ट मिल विच इज स्टार्टेड इन द कानपुर. कानपुर में जो सबसे पहली मिल थी वो अलाइन मिल ही थी विच इज स्टार्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन: the red soil is mostly found in the parts of Jammu and Kashmir, Upper Ganga Plain, eastern and west southern part of the Deccan Plateau. None of the above. जो red soil है which is found in where, इसमें आपको बताना that which this soil is found in parts of Jammu and Kashmir, Upper Ganga Plain, eastern and southern part of the Deccan Plateau. None of these above. For the correct answer, option A. I'm just confusing about this question. एक सेकंड कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, एक सेकंड रुक जाइए. आई जस्ट टेल यू. तब तक चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एकदम आखिरी में भी इस पर बात करेंगे. Question: World Bank used criteria for development. The World Bank versus बेसिकली वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया होता है फॉर द डेवलपमेंट. बैंक दैट मीन्स बैंक का हमेशा याद रखिए कि जैसे टिप बता रहा हूँ, सॉरी इट्स नॉट ट्रिप, इट्स टिप. एक टिप है कि जो है बैंक हमेशा मनी के ट्रांसफॉर्मेशन में, लेन देन में मनी के बारे में बात करती है. सो ह्यूमन बॉडी मास इंडेक्स में बैंक को मतलब बैंक से लेना देना नहीं है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर. फिर नेट अटेंडेंस रेशियो भी नहीं है. तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या कह रहा है. एक सेकेंड. ह्यूमन बॉडी मास इंडेक्स, नेट अटेंडेंस रेशियो, बोथ A and B, and the last option is per capita income. For this question, option number 4 is the correct answer, because human body mass index is a index which UNDP measures for the development. UNDP के लिए criteria, but not the bank holds this criteria. Okay, 40 पेजेस में टोटल आप लोग देख लीजिए. 45 पेजेस वी हैव टू डू टुडे, एंड अभी तक हम लोग 6 पेजेस पर ही पहुँचे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर जैसे कि मैप बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन: which of the one of the following is not a feature of developing country? डेवलपिंग कंट्री का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? सो डेवलपिंग कंट्री दैट मीन्स वहाँ पर जो
वो जो कंट्री है वो डेवलप्ड नहीं है, वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है। और अगर वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है तो वहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, इसमें से चलिए देख लेते हैं। एग्रीकल्चर आज दी मेजर ऑक्यूपेशन, तो एग्रीकल्चर आज दी मेजर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर तो होगा ही अगर डेवलप्ड कंट्री नहीं होगी। बेसिकली मास पोवर्टी भी होंगी, तभी तो वो डेवलपिंग कंट्री में नहीं आ रही है। लिटरेसी रेट होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। फिर सेकंड ऑप्शन जो आपका कहता है हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो अगर वहाँ वो कंट्री अभी डेवलपिंग यानी कि अभी उसमें डेवलप हो रहा है, देन इट इज़ नॉट आ, मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं मतलब हो सकता है। अगर होगा तो वो डेवलप्ड कंट्री फिर कहलाएगी। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। Question: which one of the following criteria is the basis to measure the development of a country according to UNDP? UNDP का भी मैंने बताया था, सॉरी बता दिए, लेकिन अब चलिए आप लोग का बताइए। Pause the video and then answer in the comment section. Then you have to again play the video. Then you have to find that the answer is correct or not. Question: which of the following criteria is the basis to measure the development of a country according to UNDP? UNDP, what is the full form of the UNDP? This is the homework question that you have to answer. What is the full form of the question? I think मैंने नहीं दिया है, so give the answer in your comment section, in this comment section, in this comment box, that what is the full form of the UNDP. Okay. Question: which one of the following criteria is the basis to measure the development of a country according to UNDP? UNDP के अनुसार कौन सा है? So per capita income, educational level of the people को लिख लीजिए आगे। Body mass index, all the given statement are true। तो फॉर दिस पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के लिए मानक ये होता है, लेकिन UNDP इज ऑल्सो चेक इट फॉर द वर्ल्ड फॉर द डेवलपमेंट। ओके, फॉर ये UNDP के लिए हो रहा है, ये बैंक के लिए, सॉरी ये वर्ल्ड बैंक के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये UNDP के लिए हो रहा है सेकंड वाला, दैट मीन्स एजुकेशन। देन बॉडी मास इंडेक्स हमारे UNDP के लिए हो रहा है मगर बैंक के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें UNDP का इक्वल बताना है। सो ऑल द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोटिक रिसोर्सेज रिफर टू, जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो क्या बताते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज रिफर टू लिविंग थिंग के बारे में बताते हैं। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज लिख लीजिए, अब तो नहीं लिख सकते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग बोथ है 1 and 3, तो बोथ 1 and 3 को अगर देखेंगे तो एक ही पर्टिकुलर चीज़ बताएगा बायोटिक, दोनों तो बताएगा नहीं। तो पहले बात आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीख लीजिए कि अगर जो नहीं लग रखी होगा तो उसको हटा दीजिए। और दूसरी चीज़, नन ऑफ द अबव ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं मांगा जाता, तो इसलिए उसको भी एक बार एलिमिनेट कर दीजिए। बाद में अगर बाई चांस नहीं लगता होगा तो आप ऐड कर लीजिए, मगर पहले तो ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। अब इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ऑप्शन बायोटिक या नॉन लिविंग, तो बायोटिक ऑप्शन जो हमारा होता है वो हमारा लिविंग थिंग के बारे में बताता है, और जो हमारा ए बायोटिक होता है, ए बायोटिक विच दिस टेल्स अबाउट नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो फॉर दिस बायोटिक रिसोर्सेज रिफर्स टू लिविंग थिंग इज द करेक्ट आंसर। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फार्मिंग, नॉट इट्स फार्मिंग, इट्स फार्मिंग, which farming required modern machinery system? Primary occupation, intensive farming, extensive farming, and then after it all the above, all the above। सो जो आपका होता है मॉडर्न मशीनरी, वो आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग जो होता है वो करता है। प्राइमरी फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग आपका हो, डो, डिगिंग स्टिक्स,
इन सब तरीके के मशीन, मतलब मशीन नहीं बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। दैट मीन्स एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स, आज भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन इंडिया प्रोड्यूसर हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल। इंडिया जो है कितने परसेंट के वेजिटेबल का प्रोड्यूसर है? 13%, 42%, 43% या 14%? दैट इट मीन्स यहाँ पर 13% पूछे, यहाँ पर 42, यहाँ पर 43 और यहाँ पर 14%। सो दैट इट मीन्स ये डेटा याद रहना चाहिए, 14% नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, बट 13% is the right answer for this question. Option number 1 is the right answer. Okay. Next question, which is the Weaver's crop. Weaver's crop एक बहुत आसान सा question है, that it means it is the easiest one. So I have to just drop it for you and you have to just comment down. ठीक है, बहुत आसान सा question है। इन्हीं चारों ऑप्शंस में से कोई एक है, हिंट दे दिए। You have to just answer it. Okay. Next question. कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री, मतलब जिस कॉफ़ी इंडिया में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस की गई थी, कौन से कंट्री से पता चला था? एक सेकंड, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, मगर जो भी दिया गया है आंसर पता चल जाएगा। मगर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन एक और लिख दे रहा हूँ, ब्राज़ील, देन फोर्थ वन इज यू हैव टू जस्ट टेक चाइना। ठीक है। सो इन चारों कंट्री में से सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ से पता चली थी? सो यमन। अच्छा, इंडिया से, इंडिया को तो मतलब कि पता ही नहीं चला। कॉफ़ी इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री? फॉर इंडिया। ठीक है, तो यमन इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कवर 17 minutes and 15 seconds. You have to see here, we have to just cover 15 minutes and 20 seconds approximately, and total number of questions I think 17 to 19 questions we have done यार, है ना? Now next question, choose the correctly matched the pair from the following. We have to just choose the correct pair. एक सेकंड, इसमें भी एक ऑप्शन एलिमिनेट गायब हो चुका है। चलिए ऑप्शन छोड़ ही दीजिए, आप तीन ही ऑप्शन में से निकालिए। ओके। ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमन बिस्मार्क, इटली से रह रहा है, मतलब इटली से है। नेपोलियन बोनापार्ट स्पेन से। बन किंग्स जो भी हैं वो इटली से। किंग्स के लिए मैंने ये क्रोन बना दिए थे, तो आप किंग्स रेफर करिएगा इसको। ठीक है। दैट इट मीन्स इसमें क्या कहा जा रहा है, जो यहाँ पे थे, तो इसके लिए नेपोलियन जो था वो स्पेन से नहीं था। बन किंग्स हमारे साथ फ्रांस से थे। So for this particular, the correct answer for this question is German and Ottoman Bismarck. That it means option number is the correct answer for this question. Okay, basically option number, इसको ब्लैक से कर दे, ब्लैक का नंबर ही नहीं आता कभी, सब ब्लैक स्क्रीन है। ऑप्शन नंबर है। ओके, दिख ही नहीं रहा है, हम लोग को दिखाना नहीं था किसको, हम लोग को दिखाना डी को नहीं था ना, तो डी को हम लोग इस तरह कर दें एंड इसको ए। ओके, लेट्स मूव अहेड। वेट अ मिनट, we have to just cover that. Yeah, next question. दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, विच लाइज ऑन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाई करता है कि नहीं? छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में लाई कर रहा है कि नहीं? गुजरात एंड मध्य प्रदेश की पटना एंड मेरठ। दैट मीन्स द क्वेश्चन सेज दैट जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, so the belt lies in Rajasthan and Uttar Pradesh. So the Rajasthan and Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh, Patna and Meerut. So basically इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, तो कौन सा बचा है?
option number 2, which is Chhattisgarh and Maharashtra. So this is the data based question and you have to just learn this data. Okay. Next question. Read the given pie chart and then answer the question that which ask. This is the pie chart. I have to just make it big and you have to look at the pie chart. Look at the pie chart. This pie chart shows the production of manganese showing statewide share in percentage 2016 to 2017 के बीच का जो मैग्नीज का प्रोडक्शन हुआ था ये उसको बताती है. ठीक है, बता रहा है पाई चार्ट. हियर इफ वी टॉक अबाउट दिस इज अ पाई चार्ट एंड ओडिशा को 25%, महाराष्ट्र को 25. वी हैव टू जस्ट एनालाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज अ पाई चार्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आर गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस given है. So firstly we have to just analyze the graph, then we have to read the questions, then again we have to analyze the graph, then again the questions के मुताबिक आपको ग्राफ को एनालाइज करना है, then you have to write the correct answer. Okay, so these are the easy three steps. चलो एक बार इस स्टेप्स को देख लेते क्या है, फिर हम लोग को क्वेश्चन कर रहे हैं. फर्स्टली एनालाइज the graph. Okay, the first method. Then after it, second, you have to read the questions. Read the questions. Oh sorry, चलिए वो तो पता चल गया था ना. And then the third step is that you have to again analyze the graph. Again आपको analyze करना होगा. And if then after it, fourth one is that you have to write down answers in your copy. Okay, हम लोग किस पे थे. या वी हैव टू जस्ट ऑन दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली हम लोगों ने इसको एनालाइज तो कर लिया है. स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक. अदरवाइज इफ यू वांट दिस पीडीएफ देन आई हैव टू जस्ट शेयर दिस पीडीएफ इन अ सेपरेट वीडियो. बेसिकली वो वीडियो 30 to 40 सेकंड्स करेगा जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पूरे एमसीक्यू के बारे में दिया जाएगा एंड द फुल पीडीएफ इज अटैच्ड इन दैट वीडियो. और 2 से 3 दिनों के अंदर में ये वीडियो भी आ जाएगी, वो वाली वीडियो भी आ जाएगी, ये वाली वीडियो भी आ जाएगी. ओके, ये वीडियो शायद आज ही आ जाए, नॉट टू मच ऑफ कन्फर्म्ड. प्रीमियर पे डाल दूंगा ना. विच टू स्टेट्स हैव इक्वल. क्वेश्चन नंबर 1 है जी. थोड़ा सा मतलब इसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें टोटल मैंने दे दिया था. वो ऑप्शंस नहीं थी क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था तो ये तो देख के कर सकते थे. ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं बनता था. बेसिकली अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में तो ऑप्शन देना ही पड़ेगा उन लोगों को, लेकिन बेसिकली मैंने नहीं दिया है. विच क्वेश्चन नंबर 1, विच टू स्टेट्स हैव इक्वल डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज. जिसमें आपको बताना है इक्वल डिपॉजिट किस में क्या है मैग्नीज के इक्वल डिपॉजिट. सो लुक एट दिस डेटा. इक्वल डिपॉजिट महाराष्ट्र में 25 है एंड मध्य प्रदेश में 27 है. अदर्स 2% दिखा रहा है. आंध्र प्रदेश 10, कर्नाटका 11, ओडिशा 25. तो ओडिशा एंड महाराष्ट्र का टाई अप हो गया. दैट इट मीन्स ओडिशा एंड महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसका ओडिशा एंड महाराष्ट्र हो जाएगा. देन सेकंड, विच स्टेट हायर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज. हायर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन हुआ है, मतलब कौन से स्टेट में प्रोडक्शन हुआ है. सो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है मैग्नीज का. अगर आप देखिए तो 25 यहाँ तक है. हाँ 11 इसमें, 10 आंध्र प्रदेश, 2 अदर्स में, तो मध्य प्रदेश ही तो बचा. तो मध्य प्रदेश में 27%. आज थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई है, तेज तेज बोल रहा हूँ. Because you guys know that I am also in class 10th and I have to just revise the questions as well for my boards. That means 27th को English board है, so I have to also study. Then third question, which state have less than 11% and more than 3% of manganese. ये वीडियो मतलब कि बन चुकी थी आज 20 आज सॉरी आज 18 है ना. ये वीडियो
मैंने बनाने इसका मतलब जो PDF था मैंने बना तो लिया था 15 को ही, फिर बनाते बनाते पता नहीं क्या हो गया। ये वीडियो आपको 23-24 तक पहुँचेगी, या एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैव लेस देन 11% एंड मोर देन 3% ऑफ मैग्नीज प्रोडक्शन। इस सब तरीके के क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं, तो थोड़ा सा देख कर करिएगा। लेस देन 3% है, तो लेस देन 3% यानी कि 2% है, 2% से कम। एक सेकेंड, लेस देन नहीं होगा, मोर देन होगा, तभी तो क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको सही कर लीजिएगा, इट इज़ नॉट लेस देन, ब्लैक से करें, कुछ दिखेगा नहीं। ओके, सो दैट इट मीन्स यहाँ पर विच स्टेट हैव मोर देन कर लीजिएगा, यू हैव टू जस्ट चेक हियर, मोर कर लीजिएगा। तो मोर देन गलत, सही था क्वेश्चन भाई। विच स्टेट्स हैव लेस देन 11 और मोर देन 3% ऑफ मैग्नीज प्रोडक्शन। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। व्हाट इज द क्वेश्चन? सो बेसिकली Andhra Pradesh is the answer. That means Karnataka is 11% of manganese production and others 2 है, तो 2 से ऊपर यानी कि है नहीं कोई, एंड 11 से नीचे 10% यानी कि आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कर्नाटका, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कर्नाटका मैग्नीज प्रोडक्शन, कर्नाटका कितना मैग्नीज प्रोडक्शन है? 11% इसका, ओके 11% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका? एडिशन का क्वेश्चन आ गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की ओडिशा क्या है, एक सेकेंड। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र, एक सेकेंड, ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका? सो महाराष्ट्र का इफ यू टॉक अबाउट, देन महाराष्ट्र में 25% है, मध्य प्रदेश में 27 एंड कर्नाटका में 11। सो इफ इट एड अप 27 एंड 25, 52 एंड 52 एंड 11, 63% इज द टोटल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का 63 इज द आंसर। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स की पूरी फुल वीडियो रहेगी, 1 घंटे की भी सकती, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। फ़ोन में बनाने में बड़े दिक्कत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो दिया नहीं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 एम्स, नॉट इट्स एम्स, इट्स एम्स, AIMS, एम्स दैट sustainable development, food security, right to work, right to equality and freedom, very easy peasy like question। sustainable development is the correct answer। okay, ये क्वेश्चन बहुत टाइम लग गया, 28 देखेंगे कब शुरू किया था ये। अच्छा हाँ, इसमें से एक चीज़ बताना भूल गया, जो लेटेस्ट CBSE ने प्रैक्टिस पेपर, एक अनाउंसमेंट मैंने डाला भी नहीं, सॉरी फॉर दैट, मगर हाँ लेटेस्ट CBSE ने जो प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस का PDF दिया था, सो वी हैव टू जस्ट टेक इंक्लूड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट PDF आल्सो। सो इसी का एक पार्ट है छोटा सा। Rahman is a poor agricultural laborer and needs a loan for cultivation on his small piece of land. Which of the following would definitely offer him a fair interest rate and flexible terms of credit? Village money lender, cooperative society, commercial bank, rich landowner। तो रहमान एक पुअर एग्रीकल्चरल लेबरर है, दैट मीन्स कि इसको ये विलेज में शायद रहता होगा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द correct answer for this particular question। okay, if you take the screenshot, then you can take the screenshot for this question because it's an important question। वैसे सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर में आए हुए क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करते, मगर सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। I have to just give the description link, I have to just give the link for the description for the PDF in the description box। You can download if you want to download, then you can download the practice paper released by the CBSE। okay, now Saranya is making a list of natural resources for a project। She puts wind energy under one column and coal
under other column. So on the what basis she classifying the resources? That it means जो शारान्या है, शारान्या is a girl, and he wants to make a particular table, and he wants to classify wind energy and coal energy, या coal and wind energy. So किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रही है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. So for this, on the basis of exhaustibility, okay, दैट मीन्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बेसिस पर ये क्लासीफाई कर रही है. ओके नाउ ए भगवान, एक सेकेंड. हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन. फो लोग शारान्य वाला ही तो कर रहे थे ना, उसके बाद ये वाला है. Question: activities in which natural products are changed into other forms come under which organ of the following? जो एक्टिविटी नेचुरल प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं, हम लोगों ने 3 तरीके का सेक्टर पढ़ा था. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से तरीके का सेक्टर था? वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, पीएसटी पढ़ा था हम लोगों ने. तो जो प्राइमरी से जाता है तो सेकेंडरी पे चला जाता है. तो इसमें ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हैं. तो इसमें पूछ रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट, मतलब प्राइमरी सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रही है, मतलब इसके सेकंड ही सेक्टर में शिफ्ट हो रही है, ऐसा कहना चाहता है. तो कौन सा सेक्टर होगा? तो प्राइमरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी. सो सेकेंडरी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वाटरनरी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. ओके, इसका जगह नन ऑफ दी अबव लिख देता सही रहता. नेक्स्ट क्वेश्चन. The question says that activities that help in the development of primary and secondary sectors come under which of the following? अब इसी में भी वही क्वेश्चन पूछा कि पीएफटी हम लोगों ने पढ़ाई, तो दैट मीन्स एक्टिविटी जो भी हेल्प कर रही है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी को चेंज होने में अदर सेक्टर में, तो कौन सा सेक्टर कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? जो एग्रीकल्चर से रिलेट करे. सेकेंडरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आए और उससे कोई नया प्रोडक्ट बने. फॉर एग्जांपल शुगर केन से शुगर, फ्लोर से बिस्किट्स. सो दीज आर द एग्जांपल्स. एंड द टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है विच प्रोवाइड्स ऑफ द सर्विस, है ना, सर्विस जो भी हमें प्रोवाइड करे, विच प्रोवाइड्स द सर्विस. एंड नन ऑफ द अबव फैक्टर. तो नन ऑफ द अबव तो ज़्यादातर आप एलिमिनेट ही कर दिया करिए एकदम, जब लगे कि नहीं होगा तब आप इसको इंक्लूड करिए. तो इसके लिए ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर, टर्शरी सेक्टर. क्योंकि भाई जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर तो लेगा ही ना. ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन नन ऑफ द अबव के लिए बनाया गया है, तो इस तरह नहीं होता. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, मैंने इसी से तीनों डाल दिए. Question: at the initial stages of development, which one of the following factors was the most important इकोनॉमिक एक्टिविटी? अच्छा, जब इनिशियल स्टेट कौन सा होता है, इनिशियल स्टेट में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है? एक ऑप्शन थर्ड यहाँ पर लिख लीजिए, प्राइमरी. प्राइमरी फैक्टर 4 ऑप्शन तो होता है ना, तो 3 ही दिया हूँ. एट द इनिशियल स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो प्राइमरी सेक्टर होता है इसका आंसर. दैट मीन्स इनिशियल स्टेट में पूछा, तो इनिशियल स्टेट में पहला यानी कि फर्स्ट स्टेज होता है. जो फर्स्ट स्टेज होता है तो वो आपका हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, आपका हमारा सबका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, अगेन अ डेवलपमेंट टाइप क्वेश्चन आ चुका है. दैट दिस क्वेश्चन अगेन, मैंने शायद डेवलपमेंट से ज़्यादा ही क्वेश्चन डाल दिया. इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स से भी दिया है ना? हाँ दिया तो है, दिया है, हाँ दिया है, हाँ दे दिया है. चलो, लेकिन बहुत कम दिया है तो इसलिए एक और वीडियो. चलो, सिविक्स पे एक पर्टिकुलर मैंने बनाई भी तो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल. ऑल द अबव आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन डेवलपमेंट. तो कंट्री का जो होता है
कंट्री रिच है, पुअर है, क्या है, कैसी है, डेवलपमेंट कैसा है। तो इसके लिए सारा इम्पोर्टेंट करता है। फॉर ऑल दी अबव फैक्टर्स, फॉर ऑल द फैक्टर्स, नॉट इट्स फैक्टर्स, गलती से, फॉर ऑल द अबव फैक्टर्स आर डिटरमाइंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स टू डिटरमाइन डेवलपमेंट। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन जैसे मार्कर से लिखने में बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम प्रिपेयर्ड, फिर पर कैपिटा इनकम, फिर डेवलपमेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2007, विच कैटेगरी इज इंडिया इंक्लूडेड? रिच कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, रिच इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, नन ऑफ दी अबव। सो अकॉर्डिंग टू द 2017 डेटा, लो मिडिल इनकम कंट्री। इसको सबको आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन। सो ठीक है। सपोज देर आर 4 फैमिलीज, हम लोग 24 पे पहुंच चुके हैं। सपोज देर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, खत्म होने वाला है और आगे का तो वो है क्वेश्चन पर चले ध्यान देते हैं। देर सपोज देर आर 4 फैमिलीज, टोटल यहाँ पर कितनी फैमिलीज हैं? 4 फैमिलीज हैं। फोर फैमिलीज बेसिकली इन योर लोकेलिटी। द एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो ₹10,000 है, एवरेज पर कैपिटा इनकम। ठीक है। इफ द इनकम ऑफ द 3 फैमिली इज ₹6,000, 8,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द इनकम ऑफ द 4th फैमिली? तो इसमें एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन आपका ये पकड़ा जाएगा कि बन जाएगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का क्या फार्मूला होता है? टोटल मतलब कि जो टोटल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कितना सम दिया गया है? 6,000 प्लस 8,000 प्लस, एक सेकंड इसको ना, चलिए कहीं और कर लेते हैं, फ्रेश पेज पे। हेयर वी हैव टू गो। $6,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 है ना। कितना है टोटल? फैमिली 4 हैं, हो नहीं पा रहा है इसमें, तो स्लाइड छोटी पड़ रही है। मैं ऐसे ही चलिए आपको बता दे रहा हूँ दैट क्या होगा। एक सेकंड क्वेश्चन पहले खुल जाए। 24 पेज था आई थिंक। हाँ, तो इसमें बेसिकली आप लोग पहले सारे को ऐड कर लीजिए जितना इनकम दिया गया है। तो 6 and 8, 14 and 6 20, 20 and 8 28, तो 28/4 हो जाएगा, है ना। 28/4, 28,000/4 और प्लस एक्स, क्योंकि एक और फैमिली मेम्बर है जिसका वी डोंट नो, इज इक्वल्स टू कितना दिया गया? 10,000 पर कैपिटा। तो इसको हम लोग मैथ्स का कैलकुलेशन इतना तो सबको आता होगा, तो 4 × 10 यानी कि 40,000 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 28,000 प्लस एक्स, देन हेयर एक्स इज इक्वल्स टू, आप लोग माइनस सब्सट्रैक्ट ऐड तो कर ही लेते होंगे, 12,000। सो 12,000 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन में कि नहीं है। 5,000, 15,000, 3,000 and 12,000, so 12,000 is the correct answer. Okay, now we are completed the approximately 25 to 30 questions, and now we are going to solve assertion and region based questions, but firstly we are going to solve the map based questions. मैप करें क्या assertion? चलिए assertion रीजनिंग कर लेते हैं, 1 घंटे तो हो ही जाएंगे टोटल क्वेश्चंस करने में। एंड अ होमवर्क क्वेश्चन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, सो हैव टू जस्ट वेट। एंड तक वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए एंड डू सब्सक्राइब। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। नोट ए रिफर्स टू असर्शन एंड आर स्टैंड फॉर रीजन। ए जो असर्शन के लिए और आर जो है रीजन के लिए स्टैंड करता है। ऑप्शन आर गिवन एट हेयर फॉर ऑल असर्शन एंड ए एंड आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
ऑप्शंस चलिए पढ़ लेते हैं एक बार. Assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of A. ये पहला ऑप्शन है. Assertion and reason both are correct, but R is not the correct explanation of A. ये दूसरा ऑप्शन. Assertion is true, reason is false. तीसरा, reason is true, assertion is false है चौथा ऑप्शन. We have to now move on the questions. The question number 1, which says that डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. जो डिफरेंट लोग होते हैं उनके पास में डिफरेंट डेवलपमेंट होता है गोल के लिए. जी इट इज़ वेरी ट्रू थिंग है ना. फॉर बीइंग अ टीचर, सपोज दैट आई एम अ टीचर. सपोज दैट करिए कि आई एम अ टीचर. सो मेरे लिए क्या होगा कि जो अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को. एंड अगर एक फार्मर है तो उसके लिए क्या होगा एक डेवलपमेंटल गोल कि वो अच्छा सा अच्छा उसका क्रॉप हो. एक क्रिकेटर के लिए सेंचुरी मारे क्रिकेट में. एक अगर आप बात करिए स्टूडेंट के लिए तो वो अच्छा गुड मार्क्स लाना चाहता है. स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं. एंड बहुत अच्छी बात है. ये तो हमारा सही साबित हो रहा है कि डिफरेंट पीपल, जितने तरीके के पीपल उतने ही तरीके का डेवलपमेंटल गोल उन सभी का. ठीक है. अब रीजन क्या कहता है कि पीपल डू नॉट वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट. अच्छा ये क्या मतलब कि रीजन में कहा जा रहा है कि जो पीपल है वो इक्वालिटी, रीजन, सिक्योरिटी सब कुछ नहीं मांग रहे हैं. तो ये तो गलत बात है. ये रीजन गलत है क्योंकि पीपल वांट्स फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट. अच्छा जो बच्चे वांट नहीं, डू नॉट नहीं पढ़ते होंगे, सो दे बिलीव दैट यहाँ पे सब दोनों सही है. तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि assertion and reason आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन नंबर ए लगा के चले आते हैं. बट फॉर दिस assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, विच इज ऑप्शन नंबर सी. इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या correct. Okay, now then move on the next question. Next question says that assertion human development report is published by UNDP is published the human development report. Yeah, it is true that human development report जो होता है वो UNDP ही पब्लिश करती है. एंड आई हैव आस्क अ क्वेश्चन. आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा. दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द UNDP. And reason says that UNDP stands for United Nations Development Press. तो reason is false because of UNDP United Nations Development Press के लिए नहीं स्टैंड होता है. प्रेस इज नॉट इंक्लूडेड हेयर. अच्छा मैं पूरा नहीं बताऊंगा नहीं तो आप लोग जान जाएंगे. तो आप लोग अपने आप से दिमाग लगा के बताइएगा. तो इसके लिए assertion is true and reason is false. ऑप्शन नंबर सी ही फिर से हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion in 1917 गांधी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है. assertion in 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड ऑफ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेशेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट इसलिए 1917 में लॉन्च किया था क्योंकि जो पेशेंट्स थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात के लिए उन्होंने इसलिए मूवमेंट शुरू किया था. assertion ये कह रहा है. रीजन कह रहा है कि महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट ऑल द बैटल्स कैन विन विद पीस एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. तो महात्मा गांधी के अनुसार जो पहला पॉइंट है वो रॉन्ग है. आप पूछिए क्यों. बिकॉज 1917 में उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च भी किया था मगर वो पीजेंट्स के लिए था ना कि पेशेंट्स के लिए. सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड पर्टिकुलरली इन अ अप्रोप्रिएट मैनर. ये नहीं कि जल्दी में पढ़ लीजिए. सो पेशेंट्स के जगह अगर पीजेंट्स होता सो इट विल बी एर, लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स है. सो assertion तो मेरा फॉल्स चला गया. If we talk about reason, then Mahatma Gandhi believed that all the battles can win with peace and the idea of सत्याग्रह. हाँ तो बापू का मानना था that अगर हिंसा से मतलब लड़ाई झगड़ा करके कोई भी बात नहीं मनवाई जा सकती है. So that means assertion is false, reason is true. That it means option number D is the correct answer for this question. That means reason is true and assertion is false. Next question, the most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metal. Yes, assertion मैंने बता दिया कि ट्रू है. रीजन बाय 1873 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट
77 million, double the value of its cotton export. Yeah. So both assertion and reason are the correct explanation of the, sorry, गलत बोल गया. Both assertion and reason is the correct, are the correct, and and assertion is the correct explanation of reason. Sorry, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, so we have to just do the 4 to 5 assertion and reason based questions. And wait a minute, I have to announce of something that ऑन 25th तक तो शायद आ ही जाए, मतलब क्लियर नहीं हूँ मैं अभी कब तक आ जाएगा, मगर एक वीडियो आने वाला है जिसमें हाउ टू यू हैव टू स्कोर अ बेटर मार्क्स इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एमसीक्यूज में आपको जो नंबर कटने के चांसेस रहते हैं उसको रिड्यूस कैसे करें, 20 में 20 कैसे ला सकते हैं, तो एक उसका वीडियो आ रहा है. मैं गारंटी के साथ तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ एक वीडियो आ रहा है, उसको आप लोग विजिट कर लीजिएगा. 4 से 5 मिनट का ही वीडियो बनाऊँगा ज़्यादातर. ओके, मैप वर्क चलिए एक बार देख लेते हैं. ऑन एन आउटलाइन ऑफ अ मैप लोकेट द थिंग्स विच आर मेंशन बिलो इन द इमेज. इसको मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ. चंपारण बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स. खेड़ा गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह. अहमदाबाद गुजरात. सो यू हैव टू, आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर है. अब जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ. अमृतसर जलियांवाला बाग कांड, जो अमृतसर है आपका, ये यहाँ इस साइड पे, तो अमृतसर के लिए ये मूव मतलब कि मार्क किया गया है. खेड़ा का यहाँ पे हुआ था सत्याग्रह, खेड़ा यहाँ पे है तो इसलिए सत्याग्रह पीजेंट वाला यहाँ पे. तो ऐसे ही आप लोग ये पर्टिकुलरली चीज़ें देख लीजिएगा. मैप आपको मैं टाइप कर दूंगा इसी पीडीएफ में. पीडीएफ की लिंक भी जल्दी डिस्क्रिप्शन में, मैंने इस डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, लेकिन दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी. एंड यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट. मैं वैसे अगर आपको मैप का स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. मैं 2 मिनट के लिए वैसे छोड़ा हूँ. ओके, हो गया. नाउ it's homework time. That means homework questions are waiting for you all. That what are the homework questions. ओनली चैप्टर 1 और 2 से सिविक्स का मैंने होमवर्क क्वेश्चन इसमें से उठाया है, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करवा चुके थे. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज द बेल्जियम हैव. बेल्जियम के पास कौन से तरीके की गवर्नमेंट है. ये सब होमवर्क क्वेश्चन से यू हैव टू रीड, एंड आंसर भी इसका दे दिए गए, मगर आप लोग अपने आप से करिएगा. 3 to 4 क्वेश्चन से मैक्सिमम होमवर्क में. ओके, सो हम लोगों ने जो एमसीक्यू वाला वीडियो का था हम लोगों ने कंप्लीट आउट कर लिया है. रीच आउट तो ये पूरा हो चुका है. नाउ 1 सेकंड रुकिए. Okay, so thank you and all the best for your examinations, everyone. All the best for your examinations and do your best in your examinations. Thank you. Have a good day. Do subscribe this YouTube channel because we are provided the quality content. Okay, thank you and have a good day. Bye bye. See you all in the next video. अच्छा, एक चीज़ और पूछना था. दैट बायोलॉजी का अगर लाना चाहता हूँ मैं तो ले आऊँ क्या. बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक वीडियो. इफ़ यू वांटेड इट देन यू हैव टू जस्ट कमेंट डाउन. कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा. एक आपको हाँ, और आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो आने वाली है जो एक टेस्ट पेपर में बना रहा हूँ. एक जो आपको सॉल्व करना है उसका सोल्यूशन वीडियो भी बनाया जाएगा, मगर आपको सबसे पहले उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है. वो टेस्ट पेपर का लिंक भी आपको एक नए वीडियो के अंदर ही मिलेगा. सो यू हैव टू जस्ट डाउनलोड, क्लिक ऑन द पीडीएफ. यू कैन सी द क्वेश्चंस, यू कैन राइट योर आंसर्स. देन हम लोग एक वीडियो फिर बनाएंगे उस पर. आप लोग उससे अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा. बेसिकली यही था. ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट.
एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश 27th February बोर्ड एग्जामिनेशन. उसके लिए कुछ टिप्स लाने वाला हूँ. थैंक यू. डू सब्सक्राइब एंड लाइक द बेल आइकन ऑल्सो. बहुत मेहनत की है. मतलब इफ़ यू वांटेड, अगर आपको अच्छा लगा, इफ़ यू कैन, नहीं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ. अगर आपको मन करे, अगर आपको पसंद आए, इफ़ यू लाइक दिस सेशन, कुछ हल्की सी भी हेल्प मिली हो, देन यू कैन support this channel. Okay, and like the press the bell icon also. Thank you. Bye bye.